किसी यंग एंटरप्रेन्योर को क्या एडवाइस करना चाहेंगे जो आपके आपके ट्रेड में, आपके बिजनेस में नया स्टार्ट हो रहा है? जो अभी कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं, तो उनको एक अपनी कंपनी में 360 डिग्री अप्रोच रखना चाहिए। जिस भी कंपनी में वो काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग वाले के साथ बैठो, मार्केटिंग के साथ बैठो, सेल्स में बैठो, सर्विस में बैठो, लॉजिस्टिक्स में बैठो, तो आप अपनी कंपनी का 360 डिग्री अप्रोच रखो। तभी आप, जब आप एंटरप्रेन्योर बनोगे, क्योंकि आप अल्टीमेटली हर चीज फेस करोगे, वेंडर मैनेजमेंट टू सेल्स टू operations, everything you have to manage single-handedly. You should behave like an MD when he is working as an employee. This video is sponsored by cvgenie.in. It is a one-stop shop for creating ATS-friendly, AI-enabled professional resumes which are handcrafted by a content writer. Visit cvgenie.in to know more. Hello viewers, welcome to another podcast of the RefaBiz show. We've got Mr. Gaurav Rohila with us today. Thank you for being a part of this podcast and let us know more about his business. So sir, you're in the HVAC industry, that is what I know as of now. So let's know more about your business. Let's start from the story. How did you get into business? First of all, thank you very much that arranging this podcast. You're most welcome. This is my first and ever podcast of my life. Nice. And to start with, my story, like I started in 2019. Okay. I'm a mechanical engineer. After Achha. working with Blue Star, Sterling Wilson, LG Electronics, Voltas, and Siemens, right from project engineer, project management to service to sales to product management. Then I thought of, if I have a 360 degree approach of this entire HVAC industry, why not to start my own? So 2019, this company got incepted by the name of Vion Infra Services LLP. Sure. And that's how we started. बढ़िया. So आपके प्रोडक्ट लाइन और सर्विस के लाइन में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप ऑफर करते हैं? क्योंकि इस पॉडकास्ट को ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ क्लाइंट्स ही देख रहे हो, बिजनेसमैन भी देख रहे होंगे, कोई कहीं पे आपको रेफर कर सकते हैं. तो लेट्स नो मोर अबाउट क्या क्या आप करते हैं अपने कंपनी. ओके. जो मेरा प्रोफेशन है और जो मेरा करियर है, उसी को मैं रेप्लिकेट किया है अपने बिजनेस में. ओके. वन शुड बी कोर एक्सपर्ट इन देयर ओन फील्ड. बिजनेस उसी वर्टिकल में करें तो दैट इज मच बेटर. इट इज प्रूवन एंड टेस्टेड. सो एज आई सेड कि मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मेरा एक्सपीरियंस है, तो वो मैं अपने बिजनेस में भी कर रहा हूँ. देन सर्विस का एक्सपीरियंस है, मैंने अपने हाथों से VRF मशीनें कमीशन की हुई है, सर्विस उसकी मेंटेनेंस देखी हुई है, तो वो हम अपने इस बिजनेस में भी कर रहे हैं. फिर VRF जो मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, उसको मैं 2009 से जानता हूँ, जिसको अपने हाथों से मैंने कमीशन किया हुआ है. फिर उसको मैंने बेचा है. बेचने में जब मैं LG में था तो फ्रॉम 2009 to 15, from 12 onwards, 12 to 15, all those 3 years I was number 2 in billing points. अच्छा. And when I joined Voltas, I was top sales grosser in Voltas for VRF. All India सबसे ज़्यादा VRF मैंने बेचा होगा. Then I got Nepal market, उसको मैंने 0 से 1000 टन expand किया. Then I got into product management. So product management means you launch VRF product in India with various features, understanding the competition analysis करके, product pricing और वो सब कुछ करके, then we launched also. So right from projects to service to sales to product management. Then so now in my business, we are channel partner with O General, LG Electronics, Voltas and Panasonic. Okay. And so we are authorized sales and service dealer for commercial air conditioning equipments. Okay. Like this commercial AC can be in your villas, in offices, in gyms, in schools, in high-rise apartments, luxury apartments. You name the application. So we have touched all the categories. Okay. So our expertise is we get into design. We are into design and build solution. So we do the detailed designing, heat load estimation, building कहाँ से heat gain कर रही है, उस हिसाब से like nowadays gone are the days कि लोग 43 डिग्री सेल्सियस पे हीट लोड एस्टिमेशन करते थे. Now we should do at 45-46. इंडोर कंडीशन लोग रखते थे 24 डिग्री सेल्सियस जब आप डिजाइन करते थे. अब वो टाइम चला गया, 24 डिग्री नहीं. नाउ ऑल्दो द कंफर्ट जोन
इज 22 से 26 डिग्री। सरकार भी बोलती है कि इसको 26 डिग्री पे ऑपरेट करना चाहिए, बट देर आर वेरियस यूजर्स और उनके अलग अलग पैटर्न्स हैं। किसी को 22 डिग्री या 21 डिग्री, किसी को 18 डिग्री सेट करना है, तो आप हर एक को खुश नहीं रखते, तो आप एक मिड एवरेज टेम्परेचर सेट करना पड़ेगा जिस पे आपको डिजाइन करना चाहिए, विच इज ऑप्टिमम इज 22 डिग्रीज। दिस इज माई एडवाइस टू द यूजर्स ऑल्सो, those who are into designing of VRF systems, those who are dealers, those who are company executives. They should design with respect to they should interview the clients. One should not decide the temperatures conditions or anything on their own. They should interview the clients. The end user should be interviewed. Interesting. So, from what I understood, the products are like commercial, residential, and luxury is another segment. Yeah. And then the services of all three correspondingly. Yes. So, the USPs, like you talked about heat load estimation, you Our talked about expertise is into we have a thorough and core knowledge of VRF, and since I have written articles on VRF in India. I don't know, I have not seen any article published on VRF, so I am among few who has written a very simple article, guide for selection of VRF system, or do-it-yourself guide for selecting a VRF system, which has been published in the Astra Journal and Indian Journal and American Journal both. So this is my expertise: design and build solution. Yeah. interesting. Okay, so like let's say that there is a proper target profiling of a client of yours. So can you tell आप किनको ढूंढ रहे हैं? I am looking for architects, interior designers, boutique builders, luxury apartment condominium developers, school owners, gym owners. So these are my prospective clients. सही है। तो ये अगर आपके प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स हैं तो इनको आपसे मिलाने के लिए कौन ऐसे रेफरल पार्टनर्स हो सकते हैं? जैसे आपने स्कूल्स की बात करी, तो शायद कोई पेस्ट कंट्रोल वाले हों या कोई वेंडर हो स्कूल यूनिफॉर्म्स के, वो हो सकते हैं। बिल्कुल। कोई अगर सही कहा। ऑफिस वाले हैं तो ऑफिस स्टेशनरी सप्लाई वाले हो सकते हैं, या Correct. कोई भले ही वो वेंडर हो लेकिन क्या पता वो बहुत अच्छे दोस्त हों उनके और वो मिलवा सकते हैं। तो ऐसे और कोई रेफरल पार्टनर्स? जैसे कोई इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर हो, अच्छा, जो ऑलरेडी उस बिल्डिंग में कर रहे हो, ठीक है। वो हमें रेफर कर सकते हैं। खुद आर्किटेक्ट्स हमें रेफर कर सकते हैं टू द बिल्डिंग ओनर्स। इवन द स्कूल में जो यूनिफॉर्म सप्लायर हो या कोई और प्रोडक्ट में डील कर रहे हो, या फर्नीचर, लग्जरी फर्नीचर मेकर्स, होम डेकोर्स, सो दीज ऑल people can refer us. Because there are chances कि बिजनेस ओनर्स भी ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे, तो वो आपस में अपने सर्कल में आपको इन लोगों से मिलाने की कोशिश कर सकते हैं। Yes, and one more unique proposition what we हाँ. offer. We offer designer and premium ACs. ओह, In commercial AC as such, किसी ने सुना नहीं होगा designer ACs. तो we have complete round cassette, 360 degree round cassette, so which is very unique. अच्छा, So which user can flaunt in their living room, in their reception area, in their conference room, or in the MD or chairman rooms. So, and then we have other unit of 1 mega set which is 132 mm height only, very compact. okay. Yeah. So mostly मतलब we have understood about your products, USPs, your potential referral partners, your target profiling of clients, and also let's talk a bit about is there a myth which you would like to bust for a client? कि कोई ऐसी चीज़ है जिसमें क्लाइंट्स को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है इस टाइम पे, और आप इस प्लेटफॉर्म पे बोलेंगे कि क्लाइंट्स को इस चीज़ से थोड़ा बिवेयर होना चाहिए? Like I said, जो एक मिथ चल रही थी, डिजाइनिंग जो करते थे हम VRF की 43 डिग्री सेल्सियस, किसी भी कमर्शियल इक्विपमेंट की 43 पे डिज़ाइन करते थे, और 24 डिग्री इनसाइड और 43 डिग्री आउटसाइड। ये सबसे बड़ा मिथ चल रहा है मार्केट में। एंड यूज़र जो बिल्डिंग ओनर्स हैं या जो रहने वाले हैं, वो पर्टिकुलरली ये कहें कि मेरा सिस्टम 45 के बैंड पे 45 डिग्री पे डिज़ाइंड है, होना चाहिए, और इंडोर कंडीशंस 22 डिग्री 21-22 डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि मशीन आगे डिप्रिशिएट करती है अपनी लाइफ, डीरेट करती है 2-3 साल, मतलब क्योंकि ये कमर्शियल एसी जो इक्विपमेंट होते हैं वो 10 साल की उनकी लाइफ होती है, तो धीरे धीरे करके डीरेट करते हैं, तो चौथे 5वें साल में
जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे वो टेम्परेचर वो नहीं देते हैं। तो इसलिए आप पहले से ही 2 डिग्री एडवांस में, मतलब 24 से जगह 22 डिग्री आप डिज़ाइन करो, क्योंकि मशीन डीरेट करेगी। दूसरा है 50 डिग्री। अब लोग बोलेंगे कि यार हाई एम्बिएंट पे डिज़ाइन करना चाहिए हमें, बट वो गलत है, क्योंकि उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। तो देयर इज अ स्टडी, मतलब इफ यू डिजाइन अ सिस्टम एट 50 डिग्री सेल्सियस, इट विल इंक्रीज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय 30%। अच्छा, सो वन शुड नॉट। ओके, सो अनदर myth is people decide the diversity on their own। जो बेचने वाला है, क्योंकि जनरली ये डील हो रही होती है, आर्किटेक्ट्स, कंसल्टेंट्स वो डिज़ाइन कर लेते हैं, और एंड यूज़र जिसने यूज़ करना है उसको अल्टीमेटली वो चीज़ मिलती है जो उसने एक्सपेक्ट नहीं की हुई, या ना ही उसने डिमांड की थी, उस पर थोपा जाता है। तो वो चीज़ वो अंडरस्टैंड करें कि एंड यूज़र परस्पेक्टिव से, तो डाइवर्सिटी हमें जितना यूज, सपोज मान लो एक लिविंग रूम है, 3 BHK 4 BHK अपार्टमेंट है, तो आप 4 बेडरूम्स एक साथ चल रहे हैं लिविंग रूम में, तभी कोई बंदा आएगा जब वो बेडरूम डी ऑक्यूपाई होगा। तो आप वर्स्ट सिनेरियो में ये देखो कि एक जो अपार्टमेंट है उसमें कितने सिस्टम ऑन रहेंगे एक पर्टिकुलर वर्स्ट सिनेरियो में, तभी वीआरएफ सिस्टम उस सबसे डिजाइन करना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि डाइवर्सिटी 130% ले ली, वो गलत है। डाइवर्सिटी यूजर के हिसाब से लेनी चाहिए। सही है। काफ़ी आपने टेक अवेज दिए हैं जो काफ़ी मिथ्स बस्ट कर रहे हैं। लास्ट आई विल लाइक टू आस्क यू कि आप अब किसी यंग एंटरप्रेन्योर को क्या एडवाइस करना चाहेंगे जो आपके आपके ट्रेड में, आपके बिजनेस में नया स्टार्ट हो रहा है? ओके, यंग एंटरप्रेन्योर के लिए मैं ये एडवाइस करूंगा कि वो पहले तो इस समय अगर वो एंटरप्रेन्योरशिप में ऑलरेडी है, उसके लिए मेरी एडवाइस तो अभी फिलहाल मैं फ्यूचर में बताऊंगा आपको। बट जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो अभी या तो कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं, क्योंकि या जिन्होंने अपनी एक इनिंग की प्लानिंग कर रहे हैं कि आई वांट टू गेट इनटू बिजनेस, सो उनको एक अपनी कंपनी में 360 डिग्री अप्रोच रखना चाहिए। जिस भी कंपनी में वो काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग वाले के साथ बैठो, मार्केटिंग के साथ बैठो, सेल्स में बैठो, सर्विस में बैठो, लॉजिस्टिक्स में बैठो, तो आप अपनी कंपनी का 360 डिग्री अप्रोच रखो। तभी आप, जब आप एंटरप्रेन्योर बनोगे, क्योंकि आप अल्टीमेटली हर चीज़ फेस करोगे, फ्रॉम वेंडर मैनेजमेंट टू सेल्स टू operations, everything you have to manage single-handedly. So one should have a live exposure, and he should do a role play. He should behave like an MD when he is working as an employee. That is such a good advice given to so many aspiring entrepreneurs. So that almost brings us to the end of the podcast. I will just leave the viewers with a note that there is a link in the bio which is of a number with which Gaurav ji can be contacted, and looking forward to a lot of transactions happening. Looking forward to people getting to know you more. And looking forward to have one more podcast and continuity में. For sure, Yeah. let's have him again and see you. Have fun. Thank you.